Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. I know we have done a balancing of chemical equations, but I want you to revise this chapter. Then we will move forward. Now, first, what is balancing of chemical equation? What are the need to balance a chemical equation? How to balance a chemical equation? And then what are the examples? So we will move forward with this topic. What is balancing of chemical equation according to law of conservation of mass? आप सबने क्लास 9th में law of conservation of mass पढ़ा है. That is the reactant side and the product side are the reactant side and the product side, the mass remains equal. This is the law of conservation of mass. That mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. जितना mass है आपका वही रहेगा, वो कभी भी chemical reaction में destroy नहीं होगा. So the total mass of element present in the product of a chemical reaction must be equal to the mass of elements present in the reactants. So due to this number of atoms of each element remains the same. इससे हमें पता चलता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हर एक रिएक्शन में वो सेम रहेंगे बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन. अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें आफ्टर और बिफोर दोनों दोनों ही केसेस में नंबर ऑफ एटम सेम रहेंगे. So this is done by a skeleton. This is done by balancing a skeletal chemical equation. What is a skeleton chemical equation? It is basically an unbalanced symbolic representation of a chemical reaction. Like हम जैसे एक outline draw करते हैं ना कि हमें क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, that is another part. बट क्या क्या करना है वो हमारा आउटलाइनिंग होता है. तो सेम वे में जब हमें केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो वो बैलेंस नहीं होती. सिंबल्स के थ्रू हमने बस एक केमिकल रिएक्शन लिख दिया. लाइक iron Fe plus copper sulfates USO4 gives you FeSO4 plus copper. So this is a skeletal chemical equation. Okay, unbalanced है, chemical representation हो गई है but वो properly balanced नहीं है. So it is known as skeleton chemical equation. C Mg plus O2 magnesium plus oxygen gives you magnesium oxide. So this is a skeleton chemical equation because यहाँ पे आपके ऑक्सीजन के एटम्स बैलेंस नहीं है. नाउ व्हाट इज अ बैलेंस्ड वन? सी डिफरेंस क्या है दोनों में. स्केलेटल में आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं बट मैग्नीशियम ऑक्साइड में सिर्फ 1 एटम है. ओके, सो बैलेंस्ड में क्या हुआ, आप देखिए ऑक्सीजन के 2 थे तो हमने ऑक्सीजन के 2 बनाने के लिए प्रोडक्ट साइड पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया. सो अब जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन के तो 2 हो गए बट एम के भी 2 हो गए. तो उस केस में हमने 2 एम के आगे भी लगाया सो दैट वो बैलेंस हो जाए. So this is the difference between skeletal chemical equation and a balanced chemical equation. Now, how to balance a chemical equation? In balancing a chemical equation, coefficients क्या होते हैं जो हम chemical symbols के आगे लिखते हैं. Before the formula or symbols of the reactants and products are adjusted in such a way that the total number of atoms of each element on both the sides become equal. वो यही कह रहे हैं कि हम जो कोफिशिएंट्स लिख रहे हैं, जो हम नंबर लिख रहे हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के आगे, इस तरह से लिख रहे हैं ताकि टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो आपके इक्वल हो जाए ऑन बोथ द साइड्स. नाउ स्टार्ट वर्किंग इन द फॉलोइंग ऑर्डर. हम काम करना स्टार्ट करते हैं कि बैलेंसिंग करनी कैसे. सेलेक्ट द कंपाउंड विद द बिगेस्ट फार्मूला. नाउ व्हाट आर द की स्टेप्स इज सेलेक्ट द कंपाउंड विद द बिगेस्ट फार्मूला. सेकेंड, बैलेंस द एलिमेंट ऑफ दिस कंपाउंड. देन बैलेंस अदर एलिमेंट्स वन बाय वन. Okay, we have to balance the chemical equation by the following order of step. So हम 4 steps के अंदर equation को balance करेंगे. In the same way you will balance the equation. तो step 1 is methane. Example क्या है आपके पास? Methane gas burns in the presence of oxygen to form carbon dioxide and water. This is a combustion reaction. Okay. Now methane gas यहाँ पे burn कर रहे हैं in the presence of oxygen to form a carbon dioxide and water. नाउ स्टेप 1 इज कि आप स्केलेटल इक्वेशन लिखेंगे फर्स्ट. तो CH4 इज योर मीथेन गैस. आप विद रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो गैस है, लिक्विड है या एक्वस है. नाउ प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. दिस इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. स्टेप 2, अब आप नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे दोनों साइड. दैट इज कि कितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है आपके. सी दिस इज हाउ यू विल मेक. एलिमेंट कौन कौन से यूज हुए? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. और नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड कितने हैं? कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2. नाउ प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं? कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 2 एंड हाइड्रोजन के 2 एंड ऑक्सीजन के 3.
Okay, now as the number of atoms of hydrogen and oxygen on both the sides are not equal, आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड 4 है एंड प्रोडक्ट साइड 2 है, दिस इज अनबैलेंस्ड, एंड ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड 2 है एंड प्रोडक्ट साइड 3 है, सो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सो व्हाट वी नीड इज टू बैलेंस द इक्वेशन नाउ. सो अ स्टार्ट इज मेड बाय बैलेंसिंग. फर्स्ट हम कार्बन और हाइड्रोजन आटम के बैलेंस करेंगे विद द बिगेस्ट फॉर्मूला बाय प्लेसिंग अ कोएफिशिएंट 2 आगे प्लेस करते हैं हम बिफोर H2O. H2O के आगे हम 2 प्लेस करते हैं. द रिजल्टिंग केमिकल इक्वेशन विल बी 2H2 फॉर्म हो जाएगा आपका. द नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए आपके हाइड्रोजन के लिए. बेटा ये आपको सिखा रहे हैं कि कैसे करनी है. ओके नाउ अब आप देखिए, जब आपने 2 प्लेस किया वाटर के आगे तो आपके हाइड्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए प्रोडक्ट साइड पे, बट रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन कितने हो गए 2. सो अभी ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है अभी आपका. तो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका. नाउ देयर इज 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स. ओके, एक कार्बन था 4 हाइड्रोजन एटम्स हो गए. 10 कार्बन एंड हाइड्रोजन आर बैलेंस्ड, हो तो बैलेंस्ड हो गए. In this partly balanced chemical equation, there are 4 oxygen atoms. यहाँ पे 4 ऑक्सीजन आइटम्स हो गए on the right hand side, while there are 2 on the left hand side. यही हमने बोला. सो अब हम ऑक्सीजन के आगे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें 4 ऑक्सीजन चाहिए थे. रिजल्टिंग इक्वेशन क्या हो गया, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2O2 बन गया रिएक्टेंट साइड पे. सो व्हाट इज द नेक्स्ट रिजल्ट, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे आपके पूरे. ऑक्सीजन के भी 4 होके, कार्बन और हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस हो चुके थे एंड ऑक्सीजन के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 4 हो गए. नाउ सो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट एंड बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल. सो दिस CH4 plus 2O2 gas gives you CO2 gas plus 2H2O is a balanced chemical equation, but always write this table when you are balancing the equation. So this is a balanced chemical equation. Now we will see some examples. First example, balance the following unbalanced equation. आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, आपको बैलेंस करनी है. Fe सॉलिड है प्लस H2O गैस गिव्स यू Fe3O4 सॉलिड प्लस H2 गैस. सो फर्स्ट राइट द स्केलेटल इक्वेशन लिख लिया आपने. ओके, सेकेंड स्टेप क्या था, आप वो देखेंगे कितने रिएक्टेंट साइड पे कौन कौन से एलिमेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड पे कौन कौन से एलिमेंट्स लिखेंगे आप. नाउ Fe हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिखा आपने. रिएक्टेंट साइड पे लिखे कितने Fe प्रेजेंट है 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1. प्रोडक्ट साइड पे कितने प्रेजेंट है Fe3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, सॉरी हाइड्रोजन ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कि आप Fe को बैलेंस करेंगे ऑन लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाइंग बाय 3, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा है. Fe क्या है, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो हाइड्रोजन आइटम्स आर ऑलरेडी बैलेंस, क्योंकि वहाँ पे रिएक्टेंट साइड भी 2 है और प्रोडक्ट साइड भी 2 है. ओके, सो व्हेन यू डू दिस स्टेप व्हाट यू विल गेट 3Fe plus H2O gives you Fe3O4 plus H2. Now tell me what are the difference between reactant and product side of oxygen. Oxygen is 1 on reactant side, but on product side it is 4. So oxygen is unbalanced. Fe and hydrogen both are balanced over here. So what you will do is you will just multiply 4 in front of H2O. When you multiply 4 in front of H2O, you will get oxygen as 4. Now what is the next step कि जब आप 4 को ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 और 2 हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा. तो दिस शोज कि आपका हाइड्रोजन अभी बैलेंस नहीं हुआ है. सो नेक्स्ट स्टेप में आप हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे. ओके, आपके पास 2 ऑलरेडी था प्रोडक्ट साइड पे, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन को तो आपके पास 8 आ जाएगा. सी 4 से किया तो 4 2 8 हो गया. So you will do this way to balance the chemical equation. So your balanced chemical equation is 3Fe plus 4H2O gives you Fe3O4 plus 4H2. Now next is example third. Now if in this way the reaction is given to you कि आपको chemical equation भी खुद ही लिखनी है स्टेटमेंट से और आपको प्रोडक्ट्स भी खुद ही
मतलब आपको बैलेंस भी खुद करना है ना। मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। आपने मैग्नीशियम मेटल का सिंबल इज Mg, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, HCl के साथ। क्या फॉर्म कर रहा है, MgCl2, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। और कौन सी गैस इवॉल्व हुई, हाइड्रोजन गैस। नाउ first write the skeletal equation, that is Mg plus HCl gives you MgCl2 plus H2. नाउ आपने लिख लिया, बॉक्स में लिख डाल दिया, नहीं डालोगे तो भी कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कि आप रिएक्टेंट्स एलिमेंट्स लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड कितने यूज़ हो रहे हैं आपके। नाउ आप लेफ्ट साइड लिखिए कितने मैग्नीशियम यूज़ हुए, कितने हाइड्रोजन और कितने क्लोरीन यूज़ हुए। सेम वे आप प्रोडक्ट साइड लिखिए कितने यूज़ हुए, 1 Cl2 2 और हाइड्रोजन 2। दैट मीन्स मैग्नीशियम तो बैलेंस है बट हाइड्रोजन और क्लोरीन बैलेंस नहीं है। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल प्लेस 2 इन फ्रंट ऑफ HCl, क्योंकि क्लोरीन वहाँ पे प्रोडक्ट साइड में 2 था और रिएक्टेंट साइड पे 1 है, तो आपने 2 लिखा HCl के सामने। सो 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 Cl2 हो गए। ओके, सो दैट मीन्स अब आप देखिए, अगर आप नेट इक्वेशन देखेंगे तो मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड पे 1 है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे 2 है और क्लोरीन रिएक्टेंट साइड पे 2 है। बट प्रोडक्ट साइड पे मैग्नीशियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 2 है। ओके, दैट मीन्स कि आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे जितने एटम्स सब बैलेंस हो गए हैं। दिस इज योर केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन। सो Mg सॉलिड ऑलवेज राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन एट द बॉटम। तो आप पूरी बैलेंसिंग कर लेता हूँ, उसके बाद एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बॉक्स में डालेंगे पूरी। दैट इज Mg प्लस 2HCl गिव्स यू MgCl2 प्लस H2। ऑलवेज राइट द स्टेट, आपको कौन सा फिजिकल स्टेट में वो मिल रहा है। और नेक्स्ट इज आपको एक इक्वेशन दे रखी है, Mg3N2 प्लस H2O गिव्स यू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। यू नीड टू बैलेंस दिस। आप क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल फॉर्म करेंगे, उसमें लिखेंगे कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। MgNHO। Now Mg is your 3 in reactant side, N is 2, hydrogen is 2 and oxygen is 1. On product side Mg is 1, N is 1, hydrogen is 4 6 5 and oxygen is 2. ओके, आपने ये लिख लिया। नाउ नेक्स्ट इज कि आप बैलेंसिंग करेंगे, 3 मैग्नीशियम थे रिएक्टेंट साइड पे, तो आप क्या करेंगे, 3 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 आप प्लेस करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सामने। ओके, सो जब आपने 3 को प्लेस किया तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 3 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। नाउ हियर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड विल चेंज। ओके, सी अब जब आप प्रोडक्ट साइड देखेंगे 3 Mg बन गए, बट साइड बाय साइड 3 ऑक्सीजन हो गए एंड 3 2 6, 6 प्लस 3 9 हाइड्रोजन हो गए। ओके, दैट मीन्स ये बैलेंस नहीं हुई। अब एक सेकेंड स्टेप देखिए आप कि नाइट्रोजन के केस में रिएक्टेंट साइड 2 थे एंड प्रोडक्ट साइड एक ही नाइट्रोजन था, तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट साइड 2 नाइट्रोजन कर दिए 2 से मल्टीप्लाई करके। Okay, so what you will get is Mg3N2 plus H2O gives you 3MgOH whole twice plus 2NH3। अब आप देखिए कि ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 6, 6 ऑक्सीजन हो गए ऑन रिएक्टेंट साइड, बट ऑन प्रोडक्ट साइड, बट ऑन रिएक्टेंट साइड वी हैव ओनली 1 ऑक्सीजन, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन रिएक्टेंट साइड। दैट इज हम H2O के सामने 6 लगाएंगे तो 6 H2O हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, 6 हो गए। ओके, सो अब आप देखिए टोटल हाइड्रोजन कितने हुए, आपका मैग्नीशियम भी बैलेंस हो गया, आपका नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, क्या बच गया, आपका हाइड्रोजन बच गया। नाउ काउंट 6 2 12, 12 हाइड्रोजन हो गए आपके एंड रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे कितने हुए, OH के बाहर 2 लिखा हुआ है, सो ये 2 जो बाहर लिखा हुआ है टोटल 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 6। नाउ 6 तो MgOH में निकल गया आपके। नाउ प्लस 2NH3 लिखा हुआ है। ओके, H के आगे क्या लिखा है, 3, सो इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6, सो 6 प्लस 6 इज 12। तो दैट मीन्स कि आपके पूरे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए 12 के साथ। सो सी द टेबल, 3Mg 2N 12H एंड O6 रिएक्टेंट साइड पे हो गए, प्रोडक्ट साइड पे 3M 2N 12H एंड O6। ओके, सो दोनों साइड बैलेंस्ड हो गए हैं। तो दिस इज अ केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन, ये आपको उसने ब्लॉक में दे दी है।
Okay, now what is your homework is you will do these four equations in your notebook for balancing practice. Okay, that's all for today. Thank you.